Okay, so let's start this. This is question number 8 of your 961-821 question paper 2 and question number 8 here says that there is a program that is needed to take a string. A program is needed to take a string containing a full name and to produce a new string of initials. मेरे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मुझे स्ट्रिंग्स लेने हैं जिसके अंदर आपके पास फुल नेम आएगा आपका एंड टू प्रोड्यूस अ न्यू स्ट्रिंग ऑफ योर इनिशियल लेटर्स. Some words in the full name will be ignored. For example, the, and, of, for, to, and many of them can be ignored. Each letter of the new string must be of your uppercase. For example, in this integrated development environment, okay, so this is basically an example of an environment, and since you have already given P1, I hope that you have knowledge regarding that. What is it? The initials for that is going to be stored in this question are going to be IDE. The second is that the American Standard Code for Information Interchange. The initials going to be used for this is this. Now, the programmer has decided to use the following global variables. It is written that the program is has decided to use the following global variables, and I hope that you know that what is the difference between a local variable and a global variable. A global variables are variables that can be used throughout your program. A 10-element 1D array ignored list of type string to store the ignored words. That means that whatever your ignored words are there, they are going to be stored in your ignored list, and that is of your data type string. The second part of that says that there is a string, and the name of that string is fn string, and it is used to store the full names, to store the full name string. So right now I have some of the data that I have collected from the question. It is said that you need to assume that each alphabetic character in the full name string may be upper or lowercase, and the full name string should contains at least one word. Now, this is the overall scenario of your question, and the program has started to the following modules. Now, you are given some number of modules: module 1, module 2, module 3, module 4. Now, I will suggest you to, before solving these questions, the first thing that you need to do is you first need to read out the whole story of the program. That means that whatever it is said into the question, just underline that or create any of your draft where you have all of that required information. And what is that required information? Such as that these names, like ignored list, the data type for that is going to be string, this name and the assumptions. Now, I will not prefer you to go on to these four parts and four areas. So let's skip it for now. Now, the A part of the question says that write a pseudocode for the module ignore word. That means that I need to write here the pseudocode for ignore word, and ignore word is right here. Now, what I need to do in this pseudocode algorithm, the first thing I need to do is I need to call this with a string parameter that should be representing a word. I should be searching for the word in the ignored list array, okay? And I need to return true if the word is found, otherwise return false. Now, at this point, you should must be having a sort of a draft into your mind. Like, first of all, the first thing that we do before solving any question, we first are going to identify that what it is, if it is either a function or a procedure. But here it is written that it is called with a string parameter representing a word. And it is also returning true if the word is found. So I hope that your concept is clear regarding the function and procedure. Can you tell me what happens in a function? फंक्शन में वैल्यू रिटर्न होती है और प्रोसीजर Yes, में नहीं होती yes, है, कुछ yes, भी yes. रिटर्न। So how did I identify this it as a function?
but just Because return getting this true हो out. रहा है ना. The first thing is that though is going to be into my draft answer, like even before writing that answer, the first thing I'm going to do is I'm going to create a draft so that I would know that what I have to do into my program. So this is a function. The name of that function is ignore word, and it is going to take your string, and it is also having your returning your boolean value. Now returns true if the word is found, otherwise false. Searches for the word in the ignored list. Okay, so that means that now I have a list. The name of the list is going to be ignored list, and I need to search for the word. That means that the words that I'm going to declare could be either be like found or index, and then I can start my loop. So let's start this right here. The first thing I'm going to write down here is the name of the function. The name of the function is your ignore word, and ignore word is called with a string parameter representing a word, called with a string parameter representing a word. अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आए तो मुझे बेटा पॉज करके बता देना, ठीक है, कि सर मुझे ये नहीं आया, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा. ठीक है ठीक. This word as string, और ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास रिटर्न कराएगा आपकी बूलियन वैल्यू, क्योंकि सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि यू हैव टू रिटर्न ट्रू इफ द वैल्यू इज फॉल्स. दिस इज फॉर 5 marks. Now the first area is done. The second part of the question is my declaration. Now I have a list and I need to find the numbers into that list. So what I'm going to do is I'm going to declare my found value, and I am also at the same time going to declare my index value. Why is that? Because this is written into the question. So if the value is found, that means that if the value is true, that is the reason that I have declared this as a boolean. And your index value is definitely going to be integer. And following this, I'm going to write here, if your found is false and your index value is 1, that means that right now, even before starting the question, I am defining some parameters right here that initially it is set to settle to be as false, because right now I have not started the program, and your index is going to be the first word. And another assumption of this question is that called with a parameter representing a word, searches for the word in the ignored list array, returns true if the word is found. And we have already discussed into our question that this word has to be in your lower cases. So let me also show you into the question. New strings, each letter of the new string must be in uppercase, and each alphabetic character in the full name may be either uppercase or may be lowercase. The full name should contain at least one word. So I'm going to declare here this word as lower, but the parameter given here is of going to be this word. Now, what we need to do is in this question is that I need to add a loop that is working throughout the elements of this array, and I need to convert all of the strings to same case. Like for example, it is written right here that your number could be either be in uppercase or lowercase, but in this ignore word, I should be comparing the elements, and I should be converting both of the strings to the same cases.
So you can add any of your own choice loop. Right now I'm using here repeat until. So it's totally your choice how you want it to be. So if the word that is in two lower is in, if it is in lower word and that is in your list, इग्नोर लिस्ट उस लिस्ट का नाम है जिसके अंदर वर्ड्स हैं सारे, और उस लिस्ट के अंदर उसकी जो इंडेक्स की वैल्यू है वो, अगर ये सारे इज इक्वल्स टू हैं आपके दिस वर्ड से, तो आप क्या कर दोगे, अगर आपको वो आपका वर्ड मिल गया आपकी लिस्ट के अंदर, तो आप बेटा क्या कर दोगे, फाउंड इज ट्रू। अगर आपको याद हो, मैंने आपको शायद नहीं, आपको तो मैंने पढ़ाया नहीं ना, खैर मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया था लीनियर सर्च। लीनियर सर्च के अंदर होता यह है कि आप शुरू के अंदर फॉल्स में डिक्लेयर करते हैं, लेकिन अगर आपको वो एलिमेंट मिल जाता है तो हम ट्रू डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे ये एज इट इज प्रोग्राम है, सिर्फ मैंने कुछ वर्ड्स चेंज करे हैं और वो वर्ड्स मैंने अपनी तरफ से चेंज नहीं किए हैं, वो सवाल के अंदर दिए गए। तो इफ दिस इज ट्रू, अगर वो वर्ड मिल जाता है तो आप ट्रू कर दें, एंड इफ, और इसके बाद अगर मिल गया तो ठीक है भाई, आप एक काम ये कर दो कि इसमें इंडेक्स की वैल्यू को इंडेक्स प्लस वन भी कर दो। अच्छा, उसका भी ख्याल रखना कि आप लोग जिस भी उसमें लिख रहे हो सीरीज में वो एज इट इज लिखना, मतलब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स का भी बहुत ख्याल रखना होता है। और ये कब तक चलेगा, अंटिल योर फाउंड इज इक्वल्स टू ट्रू। एंड इन द एंड you can definitely return your found और end function। तो ये आपके पास इसका पहला पार्ट है, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं, इसमें तो नहीं है। इसके बाद बेटा बी पार्ट है, बी पार्ट के अंदर मुझे लिखना है राइट अ सूडो कोड फॉर द मॉड्यूल गेट इनिशियल्स। अब चलो गेट इनिशियल्स पे चलते हैं। अब गेट इनिशियल्स इज फॉर 8 मार्क्स, और गेट इनिशियल्स के अंदर बेटा लिखा हुआ है कि प्रोसेसेस द सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इन द फुल वन फुल नेम वन वर्ड एट अ टाइम। कॉल कराना है गेट स्टार्ट को, गेट वर्ड को, इग्नोर वर्ड को, कि वो प्रोसेस कराए हर एक वर्ड को जिससे नहीं न्यू स्ट्रिंग बने। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ था कि प्रोग्राम इज नीडेड टू टेक अ स्ट्रिंग कंटेनिंग फुल नेम एंड प्रोड्यूस न्यू स्ट्रिंग ऑफ इनिशियल। सो आई एम ऑल्सो टेकिंग ईच वर्ड टू फॉर्म द न्यू स्ट्रिंग एंड नाउ आई नीड टू आउटपुट दैट एज वेल। The first step I need to discuss right here, that if this question is a function or a procedure. So this is not returning any value and it is also calling some of the values as well. So definitely this is going to be a procedure. Now what is going to be my declarations in my get initial part? My declarations process the sequence of words in the full name, one word at a time. That means that I might take declaration such as न्यू स्ट्रिंग, न्यू वर्ड, या दिस वर्ड, या इंडेक्स नंबर, उसके बाद फिर मैं इस पर लूप लगाऊंगा। सबसे पहले तो देखो मैं डिक्लेयर कराऊंगा अपने पास न्यू स्ट्रिंग को, और मैं इनिशियलाइज कराऊंगा एक एम्प्टी स्ट्रिंग को। इसके बाद फिर मैं एक लूप लगाऊंगा जो सारे वर्ड्स अपने पास पिक करेगा। हमारी जो एफ एन की स्ट्रिंग है, एफ एन की स्ट्रिंग ये रही, क्योंकि इसमें मैं 3 प्रोसेसेस को कॉल करा रहा हूँ, गेट स्टार्ट, गेट वर्ड और इग्नोर वर्ड। गेट स्टार्ट के अंदर कॉल विद एन इंटीजर एज इट्स पैरामीटर रिप्रेजेंटिंग द नंबर्स ऑफ वर्ड्स इन एफ एन स्ट्रिंग। फिर रिटर्न करा रहा है, गेट वर्ड में भी एफ एन स्ट्रिंग से पैरामीटर ले रहा है, और इग्नोर वर्ड तो अभी अभी हमने किया है। तो सबसे पहले प्रोसीजर होगा, डिक्लेरेशन होगी,
उसके बाद मैं डिक्लेयर कराऊंगा न्यू स्ट्रिंग और एक लूप लगाऊंगा कि सारे नंबर वर्ड्स को मैं पिक कर सकूं एफ एन स्ट्रिंग में। इसके बाद मैं अपने जो भी मेरा रिजल्ट आएगा मैं उसको इवेल्युएट करूंगा। इवेल्युएट मैं ऐसा करूंगा कि अगर उसका रिजल्ट इज नॉट इक्वल्स टू -1, तो आई कैन असाइन रिजल्ट्स ऑफ गेट वर्ड्स। अब इसको बेहतर समझने के लिए एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे जो मॉड्यूल्स दिए हैं उनको भी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है गेट स्टार्ट। गेट स्टार्ट कह रहा है कि कॉल विद द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ वर्ड इन एफ एन स्ट्रिंग एसिड्स पैरामीटर। ठीक है, अभी अभी बताइए ये वाली लाइन। रिटर्न कराओ एफ एन स्ट्रिंग को। फॉर एग्जाम्पल अगर एफ एन स्ट्रिंग के अंदर हॉट एंड कोल्ड है तो गेट वर्ड टाइम रिटर्न द वैल्यू कोल्ड। गेट वर्ड हो गया। अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे एफ एन क्यों लिया है, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है। इसके बाद बेटा मेरे पास अगला जो पॉइंट है वो है मेरे पास गेट वर्ड हो गया। गेट स्टार्ट ये रहा। कॉल्ड विद इंटीजर एसिड्स पैरामीटर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ अ वर्ड इन द एफ एन स्ट्रिंग। रिटर्न कराओ कैरेक्टर को स्टार्ट पोजीशन ऑफ द वर्ड इन एफ एन स्ट्रिंग और रिटर्न्स -1 इफ दैट वर्ड डज नॉट एक्सिस्ट। यही मैं बात मैंने अभी आपसे को कही है कि उसको हमें अपने पास कंपेयर कराना है कि अगर उसकी वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू -1 तो फिर वो असाइन करा देगा वेरिएबल को। ये हमारे पास गेट स्टार्ट हो गया और हमने गेट वर्ड भी पढ़ लिया। और एंड में हमारे पास है इग्नोर वर्ड। इग्नोर वर्ड के अंदर तो ये हमने अभी कम काम किया है। तो यहाँ तक आपको किसी किस्म की परेशानी है? नहीं है। ओके, अब मैं इसका कोड वाले पार्ट पे जा रहा हूँ। और यहाँ पे बेटा सबसे पहले तो मैं अपने पास ये लिखूंगा कि तुम्हारे पास ये क्या है, एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर का नाम क्या है? गेट इनिशियल्स। ठीक है, ये आपका आपने सबसे पहले अपना प्रोसीजर कर दिया। इसके बाद मुझे डिक्लेरेशन करनी है। मैं आपके पास यहाँ पे डिक्लेयर क्या क्या करूँगा? गेट स्टार्ट के अंदर गेट स्टार्ट है, गेट वर्ड है और इग्नोर वर्ड है। इसमें देखो सबसे पहले मुझे चाहिए होगा जिस वर्ड के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, दिस वर्ड। डिक्लेयर दिस वर्ड और दिस वर्ड नंबर और इंडेक्स एज योर इंटीजर। मतलब ये कि अभी कौन से वर्ड चल रहा है और उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है। उसके बाद एक नई स्ट्रिंग की भी हमें जरूरत पड़ेगी। और अगर वो वर्ड मतलब नॉट इक्वल्स टू वो है तो हम यहाँ पे चले जाएंगे अपने नेक्स्ट वर्ड के ऊपर स्ट्रिंग में। अगर आपको इस पॉइंट पे कोई चीज समझ नहीं आ रही तो मुझे 2 मिनट दीजिएगा। लेट मी कंप्लीट दिस, उसके बाद फिर मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा ये। अच्छा बेटा, प्रोसीजर हो गया, डिक्लेरेशन हो गई। अब तीसरे पार्ट के अंदर आप यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर दो अपनी। दिस वर्ड नंबर इज 0 एंड न्यू स्ट्रिंग के अंदर अभी मेरे पास वो एम्प्टी है, कुछ भी नहीं। न्यू स्ट्रिंग को मैंने इनिशियलाइज करा दिया और इसको मैंने एम्प्टी कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे एक लूप लगाऊंगा। आपकी मर्जी है आपको वो कौन सा लगाना है। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ रिपीट अंटिल। मैं ज्यादातर रिपीट अंटिल इस वजह से यूज करता हूँ क्योंकि इट गिव्स मी द अपॉर्चुनिटी। मतलब मैं एक काम तब तक कर सकता हूँ जब तक वो नहीं हो जाता। आई एम नॉट सेइंग कि ये लूप मतलब बाकी लूप्स आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देते, बट इट्स लाइक आई फील इजी, तो इस वजह से मैं यूज करता हूँ रिपीट अंटिल और इफ देन के साथ। तो बेटा यहाँ पे मैंने रूप लगाया रिपीट का और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अगर आपके इस वर्ड का नंबर, इफ दिस वर्ड नंबर इज incremented by the value of 1, your index should be of get start। अगर सबसे पहला वर्ड
आया तो आप क्या यूज करोगे, गेट स्टार्ट मॉड्यूल। और गेट स्टार्ट मॉड्यूल को किसके ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे, आप इम्प्लीमेंट करोगे दिस वर्ड नंबर के ऊपर। उसके बाद जो हमारे सवाल में कंडीशन लिखी हुई थी कि अगर इंडेक्स की वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू -1, तो आप अपने पास क्या करोगे, मतलब ये कि इफ देयर इज दिस वर्ड नंबर, अगर इसमें कोई भी वर्ड है। मैं दोबारा लेके चलता हूँ सवाल की तरफ। यहाँ पे ये देखो क्या लिखा हुआ है। ये returns the character start position of that word in fn string or returns -1 if that word does not exist। अगर इस वर्ड की एग्जिस्टेंस यहाँ पर नहीं है, मतलब ये कि इफ दे अगर इसकी एग्जिस्टेंस यहाँ पे नहीं है, दैट मीन्स दैट नाउ यू नीड टू गो ऑन टू योर नेक्स्ट वर्ड। और नेक्स्ट वर्ड को आप बोलोगे कि अब नेक्स्ट वर्ड से आप अपना ये वाला मॉड्यूल लगाओ, जो कि होगा गेट वर्ड का इंडेक्स। एंड इफ इग्नोर वर्ड ऑफ योर नेक्स्ट वर्ड इज फॉल्स, अगर वो फॉल्स है तो सिंपल हम अपनी न्यू स्ट्रिंग के अंदर न्यू स्ट्रिंग में नेक्स्ट वर्ड 1 लगा देंगे। और एंड इफ और ये कब तक चलेगा, ये तब तक चलेगा जब तक आपके इंडेक्स की वैल्यू -1 नहीं हो जाती। और एंड में आप आउटपुट करा दोगे न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे आप करा दोगे एंड प्रोसीजर। तो इस सवाल को एक दफ़ा हम दोबारा से समझते हैं और दोबारा से करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो, अगर मैं तुम्हारे सामने ब्रेक करूं तो मेरे पास जो ये वाला पार्ट है तुम्हारा, ये आ गई तुम्हारी डिक्लेरेशन। और सॉरी, ये वो आ गया कि फंक्शन है प्रोसीजर। इसके बाद बेटा ये वाला एरिया आ गया आपकी, जो भी आपने वेरिएबल्स यूज करते हैं। ये आ गया आपका इनिशियलाइजेशन का। ये लगा आपका लूप। ये लगा आपका सारा प्रोसेस। ये लगी आपके सवाल की कंडीशन। ये भी लगी आपके सवाल की कंडीशन। ये भी आपके सवाल की कंडीशन। ये भी आपके सवाल की कंडीशन। उसके बाद आपने इसको आउटपुट करा के एंड करा दिया। वैसे हम लोग रिपीट कैपिटल में नहीं लिखते। हाँ बेटा, कैपिटल में ही लिखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखने में मिस्टेक कर दी होगी। मैंने वही कहा था कि इसको ख्याल रखना, मैं लिख देता हूँ, करेक्ट कर देता हूँ। रिपीट, ये तो अच्छा 8 मार्क्स का है ना ये, 1 2 4 5 6 7 8। अगर ये सारे स्टेप्स आप पूरे करोगी तो आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आपके जहन में अभी भी क्वेश्चन आने चाहिए कि सर ये वाला पार्ट मैंने कहाँ से लिखा, सर ये वाला पार्ट मैंने कहाँ से लिखा। तो इसको समझाने के लिए आई वॉन्ट यू टू टेक यू बैक टू दिस क्वेश्चन। देखो, पहला काम क्या है, तुम्हारे पास सिनेरियो बेस्ड सवाल आए ना, तो पहले इतना पार्ट पूरा पढ़ लो। अभी इस पे नहीं जाना, इस पे कहीं तो फंस जाओगी। इसके बाद ए पे आओ, ए पे पढ़ो क्या है, फिर वो ही पढ़ो। अब यहाँ पे सवाल ऐसा है कि इसने बी के अंदर कहा है गेट इनिशियल्स लो, और गेट इनिशियल्स के अंदर कह रहा है कि भाई इन सबको कॉल कराओ, गेट स्टार्ट, गेट वर्ड और इग्नोर वर्ड। अगर इन तीनों को मुझे कॉल कराने की जरूरत है, तो एक काम मुझे ये भी करना पड़ेगा कि फिर मुझे उनके प्रोसेस को भी पढ़ना पड़ेगा। तो इनके प्रोसेस को हमने पढ़ा बेटा, तो सबसे पहले तुम्हारे पास था गेट स्टार्ट। गेट स्टार्ट के अंदर देखो, मैंने इंटीजर को लिया, पैरामीटर से रिप्रेजेंट कराया नंबर को एफ एन स्ट्रिंग से। उसके बाद उसको रिटर्न करा दिया -1 अगर वो वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल गेट स्टार्ट 3 अप्लाइज टू हॉट एंड कोल्ड रिटर्न 9। इसके बाद तुम्हारे पास था गेट वर्ड। गेट वर्ड में लिखा हुआ है कि एफ एन स्ट्रिंग से दोबारा कॉल कराओ, रिटर्न कराओ एफ एन स्ट्रिंग। और गेट वर्ड मतलब वर्ड को लेना। गेट स्टार्ट मतलब उसको स्टार्ट करना, मतलब नाम से भी पता चल रहा है
कि एक लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर से मैं अपनी जो वैल्यूज है उनको मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। थर्ड मेरे पास है बेटा यहाँ पे इग्नोर वर्ड, और इग्नोर वर्ड के अंदर यही लिखा हुआ है कि वो वर्ड्स को इग्नोर कर देगा लिस्ट में और उसको ट्रू कर देगा अगर वो फाउंड नहीं हुआ, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। तो यही सारा काम फिर मैंने आपके पास आगे बी पार्ट पे किया। पहले प्रोसीजर दिया, फिर दिस वर्ड दिया, नेक्स्ट वर्ड दिया, डिक्लेरेशन कराई, उसको स्टार्ट कराया। मैंने कहा कि अगर वो -1 है तो नए वर्ड पे चले जाओ, अगर वो वर्ड नहीं मिल रहा तो फॉल्स कर दो, वरना इसको न्यू स्ट्रिंग नेक्स्ट वर्ड कर दो, और ये जब तक चलाते रहो जब तक इंडेक्स -1 नहीं होता, और आप इसको आउटपुट कर दो। तो इस सवाल के अंदर आपको पहला मार्क मिलेगा डिक्लेयर कराने का न्यू स्ट्रिंग को, और इनिशियलाइज कराने का एक एम्प्टी स्ट्रिंग को, इसका तुम्हें एक मार्क मिलेगा यहाँ पर। सेकंड मार्क तुम्हें मिलेगा बेटा लूप लगाने का, कि तुम्हें सारे वर्ड्स उठाने हैं तो एफ एन स्ट्रिंग से, और यू नीड टू एक्सट्रैक्ट ऑल ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम दैट, यू नीड टू ऐड अ लूप जिसमें से वो सारे वर्ड्स आए, और उसके बाद फिर उसके ऊपर हमारे पास ये वाली कंडीशंस लगे, ये जो मैंने लगाई हुई है, ये सारी कंडीशंस लगे हैं, ये सब मैंने वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। अगर नॉट इक्वल्स टू -1 है तो उसमें असाइन रिजल्ट कर दिया कि यार अगर माइनस नॉट इक्वल्स टू -1 है तो वो वर्ड लेकर आओ, और अगर उसका टेस्ट रिजल्ट इग्नोर चल रहा है तो, और अगर इग्नोर नहीं है तो फिर आप अपनी न्यू स्ट्रिंग पे आ जाओ। उसके बाद फिर आप आपके जो नेक्स्ट वर्ड है उसको भी आप इंक्रीमेंट करते रहो, और एंड में आप उसको आउटपुट कर दो। वैसे अगर हम ये स्पेस नहीं देंगे तो हमारे मार्क्स कटते हैं। बेटा स्पेस दो या ना दो, मार्क्स तो आपके नहीं कटते, लेकिन मैंने स्पेस इस वजह से दी है ताकि मैं अपने कोड को नीट एंड क्लीन शो कर सकूं। कभी कभार ऐसा होता है कोड लिखते हुए, मतलब एक लाइन जैसे कि यहाँ पे मुझे लिखनी होती है, कोई डिक्लेरेशन मेरे हम्म। जहन से निकल जाती है, तो मैंने स्पेस इस मैं वजह वो से। स्पेस की बात नहीं कर रही, जो आपने जैसे इफ के नीचे बाद में स्पेस छोड़ के लिखा है नेक्स्ट वर्ड वगैरह, उसका पूछ रही हूँ। ये इफ और देन, नहीं, इफ जैसे हाँ ये जो आपने स्पेस दिया। इट डजेंट मैटर, इफ यू वांट टू राइट हियर, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, इसका मार्क्स नहीं कटेगा। बस स्ट्रक्चर सेम रखना। स्ट्रक्चर कौन सा होता है, जैसे ये रहा रिपीट, ये रहा अनटिल, दो इफ के लगाए तो दो एंड के लगाए, स्ट्रक्चर कंप्लीट होना चाहिए तो मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके। इसमें किसी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन? नहीं, नहीं है इसमें कंफ्यूजन। आप वैसे एंड में कर देंगे, मैं वो नोट डाउन कर रही थी। अच्छा, मैं वैसे आपको उसका स्क्रीनशॉट और इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी आपको दूंगा, तो इवन इफ यू ओके। फॉरगेट एनीथिंग तो यू कैन ऑलवेज रिव्यू टू दैट।